నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గారు జావేద్ రాజా గారు మరి వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో సమీక్ష జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రెస్ సమ్ముఖంగా మరి తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతాలలో అనేకమైన డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. వాటిని సమీక్షించడానికి సార్ గారు వచ్చారు. అదేవిధంగా మన మధ్యలో ప్రాముఖ్యమైన నాయకులు మరి శాంపాల్ గారు నేషనల్ క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ వారు కూడా మన మధ్య ఉండడము చాలా సంతోషకరం. వారి యొక్క మద్దతు కూడా ఈ యొక్క పార్టీకి వారు తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా మరి సమగ్ర సమాజంలో సమగ్ర అభివృద్ధి జరగాలని ప్రతి కులం వారికి మరి పార్టిసిపేషన్ ప్రాముఖ్యంగా మరి ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ పాలసీస్ ఉండాలని ఈ యొక్క ఎల్జేడి పార్టీ ప్రాముఖ్యంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే కాదు, ఆంధ్ర ఇండియా అంతా కూడా మరి ఇదే పాలసీస్ పెట్టుకొని ముందుకు సాగుతున్నాం. అదేవిధంగా మన మధ్యలో మరి శాంపాల్ గారు కూడా ఉన్నారు. వారు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తారు. మిత్రులందరికీ, పత్రికా మిత్రులందరికీ స్వాగతం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ పార్టీతో స్వాగతించాల్సిన విషయం, ఈ రోజున మన దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని సవరించేది గాను, లేకపోతే తోలునాడేది గాను, కించపరిచేది గాను, తక్కువ చేసే విధానాలు చాలా వస్తున్నాయి. వారు ఇచ్చిన ఈ పార్టీ ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఈరోజు పత్రికా ప్రకటనలో 100% 100% we will take care of the constitution and constitution's features అవి అప్లికబుల్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. దాన్ని డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి స్టూడెంట్గా నేను ఆయన్ని చదువుకున్నాను, ఆయన జీవితాన్ని. దానికి ఆ విధంగా మరి ఈ పార్టీ ఇటువంటి పని చేస్తున్నందుకు మేము భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాల్లో వారికి తోడుగా ఉంటాం. మరి రాజ్యాంగాన్ని సంరక్షిస్తూ రాజ్యాంగం వక్రీకరించబడకుండా, రాజ్యాంగం క్షీణించిపోకుండా, లేకపోతే రాజ్యాంగాన్ని తప్పుడుగా తీయకుండా దాన్ని మనసా వాచ వర్డ్ అండ్ డీడ్లో దాన్ని పాటిస్తారని ఈ యొక్క పార్టీ ప్రకటించిన దాన్ని మేము స్వాగతిస్తూ, మరి అనేక అంశాలు ఉన్నాయి, పెద్దలు ఉన్నారు, వారందరూ కూడా మాట్లాడతారు. తర్వాత మీరు అడిగినప్పుడు ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే నేను సమాధానం ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా మహిళల విషయమై and I speak on behalf of women and I speak on behalf of Loktantrik Janata Dal Party, and I would like to invite all the women who would like to participate in active politics to come and join our party, as we believe in 50% representation of women in our party for the equality and equal rights of women. Please come and join us to fight for the freedom of women and equal rights of women. Thank you. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्रेस क्लब में हमारी पार्टी के राज्य के नवनियुक्ति अध्यक्ष संजय जी और आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और तेलंगाना प्रदेश के कोऑर्डिनेटर रत्नम जी के आह्वान पर आप यहाँ पर आए हैं। हमारा उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि पिछले कुछ महीनों से हमारी पार्टी का संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा था। इसके कारण हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे तेलंगाना राज्य में। आज संजय जी की जो अध्यक्ष पद की घोषणा रत्नम साहब ने की है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और हम ये विश्वास दिलाते हैं तेलंगाना की जनता को कि अगर हमारी ओर से इस प्रदेश के लोगों को जो भी समर्थन प्रयास प्राप्त करना होगा, हम उसमें आपको हर स्तर पर मैं आपकी मदद करूंगा। जहां तक पिछले दिनों नवंबर के महीने में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन
विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि संगठन का ढांचा बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन आज संजय जी ने जो कमान संभाली है प्रदेश की, हमें विश्वास है, डॉक्टर सैम पॉल साहब यहाँ बैठे हैं जो एनसीसी के चेयरमैन हैं, और हमें इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। और जो हमारी ये जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है, आज से नहीं पिछले 20 सालों से हम ये प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, महिलाओं की भागीदारी 50% होनी चाहिए। हमें आज की तारीख में जो आपकी विधानसभा बनी है, इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 50% नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस प्रदेश की जो आम महिलाएं हैं, उनका प्रदेश की राजनीति में एक उनको हिस्सा मिलना चाहिए। और कम से कम हमारी पार्टी का ये कमिटमेंट है कि हम महिलाओं को 50% सीटों पे लड़ाने का काम करेंगे। दूसरा ये है कि आप सभी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि हम अभी तक इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी जो है यहाँ प्रदेश में हम रेड्डी साहब को उनका जो काम करना है, हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर। नहीं, हमारा प्रयास ये होगा कि मैक्सिमम सीटों पे हम चुनाव लड़ाएंगे, उसमें महिलाओं की भागीदारी जो होगी 50% हर लेवल पे, पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और रहेगा। मैं पार्टिसिपेट करेगी पार्टी, हमारी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी जी। देखिए, जहां तक ट्रिपल तलाक बिल की बात है, कोई भी बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले सारी अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जो प्रोसेस है। हम कोई सपोज कीजिए बिल ला रहे हैं और या हम किसी मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारी जो यहाँ की यूनिट है, हम उसके बीच में उसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट आ सकते हैं, इधर उधर से उसको हम उसको कहते हैं कंसेंसस डेवलप करेंगे, कंसेंसस से ही बिल आया जाएगा। आपने जो भी जिन दो कानूनों की बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक और 370 का, आपको ये बता रहा हूँ मैं, 370 के लिए आपने एकदम से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया 2 मिनट के अंदर। लेकिन उसमें आपको जो होता है, ये बिल जो है असेंबली से पास होगा तब सेंट्रल जाता है। आपने असेंबली से पास नहीं करवाया, ना वहां से रिकमेंड होके आया, तो ये अभी जो है ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट पे। आपने लागू तो कर दिया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और मैं आपकी जानकारी के लिए, जैसा कि इन्होंने ये बिल में शो करना चाहते थे कि 370 के बाद क्या उसको बोलते हैं, आतंकवाद मुक्त प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। आपको पता है पिछले जब से 370 को उन्होंने एब्रोगेट किया है, कितने लोग हमारे सिपाही और आर्मी के लोग शहीद हो गए। कहीं ना कहीं तो आपका जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, कहीं ना कहीं तो फेलियर है उसका।
या हमारे नौजवान या हमारे जवान जो है शहीद होने के लिए भेजे जाते हैं। आप अपने पड़ोसी देशों से संबंध नहीं बना पा रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? जो सरकार सत्ता में, जो पार्टी सत्ता में है, ये उसकी जिम्मेदारी है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आतंकवाद बहुत बढ़ गया, लेकिन जो आप क्लेम कर रहे हैं कि 370 के बाद वहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिल गए, वहां के लोगों को employment बढ़ गया, वो कहाँ है? ऑन पेपर है। अभी कश्मीर में इन्होंने जो चुनाव घोषित किए हैं, 3 फेज में चुनाव होगा, 24, 28 और 1 अक्टूबर को। हमारी पार्टी वहां भी लड़ रही है, लेकिन हमारा एजेंडा ये है कि कश्मीर में आतंकवाद नहीं होना चाहिए। आतंकवाद हम सबके लिए बहुत खतरनाक चीज है। हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों में एक जो है अपनापन पैदा कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। वो कोई भी सूरत में हो सकता है। कौन? हाँ, मेरी 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 व्यक्तिगत राय पूछ रही या पार्टी की राय पूछ रही? पार्टी कश्मीर इज आवर पार्ट, हमारे देश का हिस्सा है और था और रहेगा। और जो वहां की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसमें हमें आपको मिलके उसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि मैं गोली और बारूद और जेलों में। आज मालूम है आपको कितने कश्मीर के लोग जो तिहाड़ जेल दिल्ली में है, अंडर ट्रायल है, आज तक उनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। क्या 20 साल से जो लोग जेल में हैं जिनका ट्रायल नहीं हो, उनकी वो 20 साल की जिंदगी सरकार वापस कर सकती है? आपने नौजवान लड़कियों को वहां से उठा लाए, एनआईए ने वहां से उठा लिया, उसके ऊपर आपके पास कोई प्रूफ नहीं मिला। आप बताइए, आपने दिल्ली में जो था मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। 17 महीने हो गए, आप ट्रायल नहीं शुरू कर पाए, 17 महीने में आप रिकवरी नहीं कर पाए, इकन्नी आप 1 रुपया साबित नहीं कर पाए, तो ये क्या है भाई? इसका मतलब आप पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति आपकी जो नफरत की जो एक दृष्टि है उसको खत्म कीजिए। आपको 17 महीने हो गए, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है और ये कहा है, ईडी को उन्होंने लताड़ लगाई है कि तुम्हारे केस में कुछ दम नहीं है, ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल कल जेल से वापस आ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और कोई सवाल? यस, आपका सवाल जो है बहुत वाजिब है। हम जल्द ही आपके बीच में एक विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे। विजन डॉक्यूमेंट में हमारा ये रहेगा कि आप तो जैसा कि आपने कहा है कि तेलुगु यहाँ पे रीजनल पार्टी भी है और नेशनल पार्टीज में हम क्या नई चीज़ देंगे। ठीक है, हम अभी चूंकि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो रहा है, उसमें नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम गारंटी देंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, हेल्थ गारंटी होगी। उसके बाद में एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ हम एक ऐसी चीज लाएंगे, एजुकेशन रिलेटेड टू टेक्निकल जॉब, लाइक ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपने 8वीं पास की, 10वीं पास की और आपका जो रुचि है किसी एक ट्रेड में है, 35-40 ट्रेड उसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। और हेल्थ गारंटी कार्ड मिलेगा, हेल्थ गारंटी कार्ड। को मालूम है कि पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, चाहे वो एनडीए हो
चाहे वो इंडिया हो, लेकिन उन्होंने गांठ साठ करके कभी उन्होंने इनकम टैक्स से डराया, कभी ईडी से डराया, कभी सीबीआई से डराया, और 242 सीटों वाली पार्टी ने बहुमत हासिल करके इन सरकारी विभागों का दुरुपयोग करके केंद्र में सरकार बना ली। लेकिन आज पहली बार 10 साल तक इन्होंने कभी भी ये कहा कि ये बीजेपी की सरकार है। आज कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह रही है कि ये एनडीए की सरकार है। आज विपक्ष की आवाज़ जो है लोकसभा में सुनी जा रही है। इससे पहले ये होता था 10 साल तक कोई भी बिल, अगर आपको याद हो 2019 में जिस तरीके से 370 को जिस तरीके से हटाया गया था कश्मीर के मामले को लेकर, या 3 तलाक का मामला जो था, जिस तरीके से सदन में किसी भी प्रकार की बहस किए बना। अब मैं आपको ये भी बता दूं, एक टाइम वो आया था जबकि 200 सांसद निलंबित कर दिए गए हाउस के अंदर और 20 बिल पास करा लिए गए। लेकिन आज वो समय नहीं है। अगर ये बिल लाने वाले थे, वो बिल जो था एक ब्रॉडकास्टिंग बिल था, जो ब्रॉडकास्टिंग बिल ये लाना चाहते थे जिसमें आप लोगों की पावर को कर्टेल किया जा रहा था, जो प्रेस की आज़ादी थी उसको छीनने जाने वाला था। ये अपोजिशन के दबाव में उस बिल को रोक लिया गया। आपको याद होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल लाए थे, उसको जो है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर कर दिया गया। वो दिन दूर नहीं, ये ज़्यादा दिन तक सरकार, उनको ये है कि ये वो सरकार वही है जो 2019 वाली सरकार थी, जो 2024 की सरकार में ये बहुत बड़ा अंतर आया है। हम आपके प्रदेश में आज जो बैठे हैं, इसके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यहाँ की सरकार को भी ये बताना चाहते हैं, रेड्डी साहब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनको मैं देख रहा हूँ और मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ जो उन्होंने अपने चुनाव में वादे किए थे, जो आम जनता से सरोकार करने वाले वादे थे, उनको पूरा करने का काम करें। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने जनता की अपेक्षाओं को नज़रअंदाज किया तो हमारी पार्टी उनके खिलाफ भी बोलने के लिए मजबूर नहीं होगी। ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। हो सकता है आने वाले अगले हमारी विजिट में मैं मुख्यमंत्री से स्वयं मिलूँगा और यहाँ की जो और जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके ऊपर हम लोग उनसे विचार विमर्श करेंगे। और हम चाहते हैं ये जो सरकार है कांग्रेस की, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ना होने के बावजूद हम चाहते हैं इस देश में सेकुलरिज्म जो है वो उसको मेंटेन किया जाए, कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन किया जाए। इसलिए हम आज आपके बीच आए हैं और हमारी पार्टी तेलंगाना राज्य में इस सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। ये मेरा आपके बीच करने का इरादा था। अगर कोई सवाल हो तो ये